السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہم یا لین حروف ہجا الف سے لے کر کے یا تک کے اوپر داخل کر کے اس کو پڑھ لیے ہیں پچھلے سبق میں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے یا لین کا مشق کریں گے، یعنی یا لین کو بیچ میں، شروع میں، آخر میں کلمہ کے اندر میں داخل کر کے کس طریقے سے ملا کر کے پڑھتے ہیں، ان چیزوں کا آج ہم مشق کریں گے، تاکہ ہمیں ان سے فائدہ یہ ہو کہ آگے قرآن شریف کے اندر میں کسی بھی آیت کے اندر میں اگر یا لین داخل ہو جائے، یا لین آ جائے تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ اسی لیے اس کو صحیح سے پڑھنے کے لیے یہاں پر یا لین کا ہم مشق کریں گے۔ آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے جو مشق دیا ہے اسی کا ہم مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے؟ مشق، جیسے مشق، اوکے۔ پہلا ہے اینا، حمزہ یا زبر ای پلس نون زبرنا، اوکے، برابر اینا۔ اس کے بعد ہے پلس صیف۔ دیکھو اس کو ملاتے ہیں کس طریقے سے؟ حمزہ یا زبر اے پلس یعنی ملانا نون زبرنا، کیا ہو گیا؟ اینا، برابر اینا، لکھا ہے نا۔ اس کا اجرا کس طریقے سے کرو گے؟ پیچھے پڑھے تھے نا۔ اس کے اندر میں کیا پائی جا رہی ہے؟ یا لین جو ہوگا اس کی شرطیں پائی جا رہی ہے نا۔ کون کون سی شرطیں اس کا ہے؟ ایک یا کا ہونا، اس کے اوپر جزم کا ہونا، وہ دونوں چیز ہے، یا اور جزم۔ اس کے بعد پیچھے والے حرف یعنی الف کے اوپر، یعنی الف یہ اس کے اوپر زبر داخل ہو گیا تو حمزہ، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر، کیا ہے؟ زبر۔ تو یہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ یہاں پر یا لین کا قاعدہ جاری ہوگا۔ تو کیسے بولو گے اس کو؟ حمزہ یا زبر اے، یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس لیے یا لین ہوگا۔ یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے، جیسے حمزہ یا زبر اے۔ ایسے نہیں بولنا حمزہ یا زبر اے، یہ بولو گے غلط ہو جائے گا۔ حمزہ یا زبر اے یہ بھی نہیں بولنا۔ کیسے بولو گے بچوں؟ حمزہ یا زبر اے، نون زبرنا، نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے تو جلدی پڑھنا ہے۔ نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے نون زبرنا۔ ملا کر کے کیا ہو گیا؟ یہ دونوں ملائے تو کیا ہوا؟ وہی ہے اینا۔ کیا بولو گے؟ اینا، اینا۔ اس کے بعد ہے صاد یا زبر صی، صاد یا زبر صی۔ اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے اور نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن جلدی جھٹکا مار کے بھی نہیں پڑھنا۔ کیسے بولو گے؟ صاد، صاد نکالنا ہے، صاد پر حرف ہے، سمجھے نا؟ صاد یا زبر صی، صاد یا زبر صی، کیا؟ صی پلس فا پیش فو، کیا ہو گیا؟ برابر صیفو۔ جب ملا کے لکھو گے تو اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ یہ الگ الگ کر کے ہم بتائیں کہ یہ لفظ الگ ہے، یہ ملا کر کے یا لین ہوا پلس فا پیش فو، فا کے اوپر حرکت ہے، برابر یہ کلمہ بن گیا، سمجھے؟ یہ کلمہ جوڑ کر کے جو بڑا بنتا ہے اس کا نام ہے جملہ، اس کا نام کلمہ ہے، سمجھے؟
कैसे बोलोगे, स्वाद या ज़बर सई। यहाँ पर कौन सा कायदा जारी होगा बच्चों, यहाँ पर याई लीन होगा। मालूम है ना क्यों होगा याई लीन, इसलिए कि याई लीन का जो 3 शर्त है वो तीनों शर्तें यहाँ पाई जा रही है। कौन कौन सी शर्तें हैं, या का होना शर्त ज़रूरी है, और उसके बाद या के ऊपर जज्म का होना ज़रूरी है, वो भी यहाँ पाई जा रही है। उससे पिछले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर का होना ज़रूरी है, वो भी यहाँ पाई जा रही है। समझे, तो क्या हो गया यहाँ पर याई लीन होगा। कैसे पढ़ोगे इसको, स्वाद या ज़बर सई फ़ा पेश फू, फ़ा पेश फू, जल्दी पढ़ोगे तो क्या हो गया, फ़ा के ऊपर पेश की हरकत है, पेश की हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें। पेश की आवाज़ आगे को जाती है, जैसे फ़ा पेश फू, सई फू, क्या सई फू। ओके, समझ में आ गई बात। आगे है हमज़ा ज़बर आ प्लस बा ज़बर बा प्लस वाव या ज़बर वई। अब यहाँ पर वाव या लीन को लाया है, समझे, वाव या ज़बर वई, अब वई हाजिर ही, अब वही प्लस बराबर अब वही। क्या हो गया, हमज़ा ज़बर अ प्लस ब ज़बर ब अबा प्लस वाव या ज़बर वई, यहाँ या लीन प्लस यहाँ क्या हो गया अबा वई प्लस हाजिर ही, क्या हो गया अबा वई ही, अबा वई ही। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। बा ज़बर बा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे बा ज़बर बा अब, वाव या ज़बर वई, या लीन होगा। क्यों होगा या लीन बच्चों, इसलिए होगा कि या साकिन से पहले वाव के ऊपर ज़बर है, इसलिए या लीन होगा। या लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे वाव या ज़बर वई अबा वई, या लीन की 3 शर्तें पाई जा रही है, तो या लीन हो गया, समझे। उसके बाद है हाजिर ही, हा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी नहीं खींचे, मारूफ पढ़े और मजहूल आवाज़ से बचे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे हाजिर ही, क्या हो गया अब वही ही, अब वही ही। ऐसे नहीं बोलो अब वही ही, गलत हो जाएगा। अब जल्दी बोल रहे हैं ना, अब वही ही, अब वही ही। ओके, उसके बाद है या लैतनी, या खड़ा ज़बर या प्लस लाम या ज़बर लई, क्या हो गया या लई प्लस ता ज़बर ता, या लैता, या लैता प्लस नून या ज़ेर नी, क्या हो गया बराबर या लैतनी, या लैतनी। ओके, समझ में आ गई बात। इसका इजरा कैसे करोगे, या खड़ा ज़बर, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो हमें मालूम है कि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर होता है पढ़ने में, शक्ल में नहीं। तो कैसे पढ़ोगे इसको,
या खड़ा ज़बर या के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे या खड़ा ज़बर या, लाम या ज़बर लई, है ना। यहाँ क्या होगा, या लीन, क्यों, इसलिए कि या साकिन से पहले पिछले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है तो या लीन होगा। इजरा कैसे करोगे, या लई, लाम या ज़बर लई, या लीन होगा, इसलिए कि या साकिन से पहले लाम के ऊपर ज़बर है, इसलिए या लीन होगा। या लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे। जैसे लाम या ज़बर लई, क्या हो गया, या लई, ता ज़बर ता, है ना, ता ज़बर ता, ता के ऊपर ज़बर की हरकत है, ज़बर की हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। जैसे ता ज़बर ता, या लई ता, नून या ज़ेर नी। अब यहाँ पर या मद्दा को ले आया, यानी या साकिन से पहले नून के नीचे ज़ेर है तो क्या हो गया, या मद्दा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। कैसे हम इजरा किए थे पीछे में या मद्दा का, वैसे करना। कैसे किए थे, या मद्दा होगी, इसलिए कि या साकिन से पहले नून के नीचे ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे नून या ज़ेर नी, या लैतनी, या लैतनी। कैसे बोलोगे, या लैतनी। इनको खींचा जा रहा है और लास्ट वाले को, शुरू वाले को और लास्ट वाले को क्यों खींचा जाए वो सब मालूम है आप लोगों को। कैसे बोलोगे, या लैतनी, या लैतनी, समझे। उसके बाद है क्या है, औ हैता, क्या है, हमज़ा वाव ज़बर औ। यहाँ पर क्या होगा, वावेलिन, क्या होगा, जो पीछे से पढ़े थे वावेलिन, वाव साकिन से पहले ज़बर है तो क्या हो गया, वावेलिन, यालिन नहीं। यहाँ पर इसका नाम क्या है, वावेलिन, वाव साकिन के से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है। जैसे बोलोगे हमज़ा वाव ज़बर औ, इनको भी नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे। हमज़ा वाव ज़बर औ प्लस हा या ज़बर है, यहाँ यालिन, हमज़ा हा या ज़बर है, औ है, क्या हो गया, औ है, औ है, ऐसे नहीं बोलना है। कैसे बोलो, औ है प्लस ता ज़बर ता, औ है ता बराबर क्या हो गया, औ है ता, मिला करके ऐसे लिखना है, समझे। औ है ता, हमज़ा वाव ज़बर औ, वावेलिन होगा, इसलिए कि वाव साकिन से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है, इसलिए वावेलिन होगा। वावेलिन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे। जैसे हमज़ा वाव ज़बर औ, उसके बाद है हा या ज़बर है, यालिन होगा, इसलिए कि या साकिन से पहले हा के ऊपर ज़बर है, इसलिए यालिन होगा। यालिन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे। जैसे हा या ज़बर है, औ है, औ है, समझे। उसके बाद ता ज़बर ता, ता के ऊपर ज़बर की हरकत है, ज़बर की हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा बिना खींचे, मारूफ पढ़ें, थोड़ा बिना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। जैसे ता ज़बर था, क्या हो गया, औ हैता, औ हैता, औ हैता, समझे। आगे है देखो, ऐन या ज़बर आई,
या लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले आइन के ऊपर ज़बर है। तो यहाँ पर करके बताता हूँ। आई प्लस नून या ज़बर नहीं, आई नहीं प्लस नून ज़ेर नी बराबर क्या हो गया, आई नई नी, आई नई नी, आई नई नी। आइन या ज़बर आई, या लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले आइन के ऊपर ज़बर है इसलिए या लीन होगा। या लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे आई, आइन या ज़बर आई, नून या ज़बर नई। या लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले नून के ऊपर ज़बर है इसलिए या लीन होगा। या लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे नून या ज़बर नई, आई नई, नून ज़ेर नी, आई नई नी। नून के नीचे ज़ेर की हरकत है, ज़ेर की हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचें, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे नून ज़ेर नी, आई नई नी। कैसे बोलोगे, आई नई नी, आई नई नी। ओके, खींच करके नहीं बोलना है। इसके बाद है लाम अलिफ ज़बर ला प्लस रा या ज़बर रई, ला रई प्लस बा ज़बर बा, ला रई बा बराबर जी। लाम अलिफ ज़बर ला, खींच करके बोलोगे, समझे। अब यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा है। अलिफ मद्दा का कायदा हम पीछे पढ़ चुके हैं। अलिफ मद्दा के लिए क्या शर्त है, अलिफ का होना शर्त है और उससे पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर का होना शर्त है, यानी दो शर्त है, वो दोनों शर्तें यहाँ पर पाई जा रही है, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा हो जाएगा। तो अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़े थे पीछे में, यहाँ भी पढ़ना है। लाम अलिफ ज़बर ला प्लस रा या ज़बर रई, या लीन प्लस बा ज़बर बा, ज़बर की हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। क्या हो गया, ला रईबा बराबर ला रईबा। लाम अलिफ ज़बर ला, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले लाम के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे लाम अलिफ ज़बर ला, रा या ज़बर रई। या लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले रा के ऊपर ज़बर है इसलिए या लीन होगा। या लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे रा या ज़बर रई, बा ज़बर बा, बा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे बा ज़बर बा। क्या हो गया, ला रईबा, ला रईबा। ओके, उसके बाद है गैरी, गैरी, समझे। गैन या ज़बर गई प्लस रा या ज़ेर री बराबर गैरी। ओके, गैन या ज़बर गई, या लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले गैन के ऊपर ज़बर है इसलिए या लीन होगा। या लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे गैन या ज़बर गई प्लस रा या ज़ेर री। अब यहाँ या मद्दा हो गया बराबर, क्या हो गया, गैरी, गैरी, गैरी। गैन या ज़बर गई, या लीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले गैन के ऊपर ज़बर है इसलिए या लीन होगा। या लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे गैन या ज़बर गई, रा या ज़ेर री। यहाँ पर या मद्दा होगा। क्यों होगा या मद्दा, इसलिए कि या साकिन है और उससे पिछले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे रा या ज़ेर री, गैरी, गैरी। यहाँ फ़र्क देख रहे हो ना कि या साकिन से पहले अगर ज़बर है तो जल्दी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि या लीन हो गया। या साकिन से पहले अगर ज़ेर है तो यहाँ पर या मद्दा हो गया, यहाँ पर खींच के पढ़ना है, बस यही फ़र्क है। लेकिन
एक बात आप ध्यान में रखना है, बस आज के सबक इतना ही पढ़ाएंगे, आगे कुछ बच गया है कलिमा वो कल के सबक में बताएंगे और उसमें सारा चीज़ डिटेल से बताएंगे। या साकिन से पहले पेश आता है कि नहीं आता है, और या साकिन से पहले ज़बर आता है तो क्या होता है वो मालूम है, या साकिन से पहले ज़ेर आती है तो क्या होता है वो भी आप सबको मालूम हो गया है पीछे सबक में, और आज भी बता दिए कुछ। लेकिन वो साकिन का जिस तरीके से कायदा मुकम्मल हो गया है उसी तरीके से या साकिन का कायदा मुकम्मल कल हम कर देंगे। उसके बाद दूसरा सबक पढ़ाएंगे। कल के सबक में हम या साकिन का कायदा मुकम्मल करेंगे और उसमें सारा डिटेल्स के साथ बताएंगे कि या साकिन से पहले कौन कौन से हरफ आएंगे, कौन कौन से हरफ नहीं आएंगे, या सब हरफ आएंगे। वो सारा का सारा हम कल के सबक में इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल 7 बजे फिर मिलेंगे। अगर हमारे चैनल पे जो भी बंदा नया है और कुरान शरीफ सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो हमारे चैनल को लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटा को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुँचे और उनसे आप फैज़ उठाएं, ताकि समझे ना। चलते हैं, आज के सबक में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।